اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 17، 101 آیات 111 آیات ہیں سورۃ یوسف کی طرح۔ جس سورت کی 111 آیات آتی ہیں نا تو مجھے لگنے لگ جاتا ہے دیر از سم تھنگ امپورٹنٹ۔ جب ہم نمبرز پر بھی تحقیق کریں گے، میرا ارادہ تو تھا اس سال کہ نمبرز کے مطابق ہم قرآن پہ ریسرچ کریں، بٹ یہ پاسبل نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کے لیے 4-5 سال چاہیے مجھے اور میرے اسٹوڈنٹس کو، اور کوئی بھی۔ آئی ویلکم ایوری ون کہ وہ اس ریسرچ میں حصہ لیں، تو ہمیں بہت سارا ٹائم چاہیے، ہمیں بہت سارا غور و فکر کرنا ہے، ہم نے یہ قرآن سیکھنا ہے، ایسی بکس لکھنی ہیں جو ہمارے آنے والے زمانوں میں ہمارے ہی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں۔ اللہ کرے ہم سے اللہ یہ کام لے۔ تو سورہ نمبر 17، اس کا نام اسراء بھی ہے، جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 111 آیات ہیں اور اس کا ٹائم آف ریولوشن آلموسٹ کلیئر ہے، کیونکہ یہ معراج کے موقع پہ نازل ہوئی۔ 12 رجب 12 نبوی کی رجب میں معراج ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمیں ڈیٹ بھی پتہ ہے کون سی ہے بلا، 27 آف رجب، جس میں کنڈے پکاتے ہیں۔ جی 27 آف رجب۔ تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ دس از دا کمنٹری آن واقعہ معراج، اور ہم واقعہ معراج سمجھتے ہیں آسمانوں پر جانا۔ اس کی ڈیٹیل سورۃ النجم میں ہے۔ واقعہ معراج کا ایک بہت بڑا پورشن اسی دنیا میں ٹریولنگ کا ہے، جس کو اسراء کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ لفظ بولا ہی نہیں جاتا، اس صورت کا نام ہی بنی اسرائیل رکھ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے مسجد اقصیٰ کے بارے میں انٹروڈیوس کرانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو، مطلب آپ لوگوں سے مراد یہ ہے، آپ لوگ تو اویئر ہوں گے کیونکہ میں اس پہ کافی لیکچرز دے چکی ہوں۔ تو اس کی ہسٹری سے بہت سے نوجوانوں کے ساتھ میری گفتگو جب ہوتی ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بچوں کو سنوا دوں، تو میرے چینل پہ تو کوئی بھی کمنٹ کر دیتا ہے، ان میں سے بہت سے لڑکے وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میم مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہم نے نام بھی آپ کی منہ سے سنا، ویئر اٹ سچویٹڈ یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ کس نے بتانا تھا؟ قرآن نے بتانا تھا۔ قرآن کھولا نہیں اس چیز کے لیے، قرآن کے ختم پہ ختم کیے ہیں ہم نے، ہر رمضان میں کیے ہیں، ایٹ لیسٹ ہر مسلمان پڑھتا ہے رمضان میں، لیکن وہ ایسا پڑھتا ہے کہ اندھا ہو کے پڑھتا ہے۔ اس کو لفظ کی فارمیشن تو نظر آ رہی ہوتی ہے، پروننسیشن بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے، تجوید بھی سم ٹائم بہت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون آف مائی فیوریٹ سوراز سورت اسراء، دوسرا نام اس کا بنی اسرائیل ہے۔ 111 آیات ہیں اور ٹائم آف ریولوشن 12 نبوی ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو پہلی چند آیات ہیں ان میں پوری کی پوری جوئش ہسٹری بتا دی گئی ہے۔ میں نے نوٹس بنائے بھی تھے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں نام اس کا آ گیا ہے مسجد اقصیٰ کا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے کر گئی۔ اسرا کہتے ہیں رات کے حصے کو، رات سر سے ہے، چھپی ہوئی راز والی بات کو بھی سر کہتے ہیں۔ اسرا ایک بہت اسمال پورشن آف نائٹ، ایسے سمجھیں آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، شاید ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں، مطلب اگر رات کے مختلف حصے کیے جائیں تو ہمارے ہاں کتنے گھنٹے کی رات ہوتی ہے؟ 10-12 گھنٹوں کی تو ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے 1 پورشن، ایک چنک اللہ نے یوز کیا ہے اپنے بندے کو بے عبدہ ہی۔ انسان کی معراج کیا ہے؟ وہ جتنا اللہ کا غلام ہوگا، جتنا اللہ کے آگے ہیومیلیٹ ہوگا، جتنی عاجزی اختیار کرے گا، اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے گا۔ کیا اللہ نے اسی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں کہا؟ سراج منیر نہیں کہا؟ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ نہیں کہا؟ قرآن کا پارٹ نہیں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ اتنے بڑے ٹائٹل سے اللہ نے اعزاز نہیں بخشا؟ یہاں کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ کے مقابلے میں بندوں میں سے بہترین بندہ بھی اللہ کا ایک غلام ہی ہے، اور انسان سب سے بہترین ہے بھی وہی جو اللہ کا غلام بن کے رہے۔ غلام کو اکڑ نہیں سچتی۔ پھر بے عبدہ ہی، اپنے بندے کو لے گیا، لیلم من رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام میں، اس کو تو ہم حرم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے خانہ کعبہ میں ایک نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے،
हमें मस्जिद नबी का भी पता है, एक नमाज का कितना मिलता है, 50,000 मिलता है, लेकिन हमें इस हरम का नहीं पता कि हमारे 3 हरम हैं। तीसरा हरम हमारा मस्जिद अक्सा है, वहाँ एक नेकी का 25,000 मिलता है। वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई इलल मस्जिदिल हराम, एक मस्जिद से जो अल्लाह ने मोहतरम की है, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ लेकर गया। बारकना हौलहू, जहाँ बरकतें रखी हैं उसके माहौल में, उसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतें रख दी हैं। लेनो रेयाहू, ताकि वो दिखाए मिन आयातिना, अपनी निशानियाँ। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, वो सुनने वाला भी है और वो जानने वाला भी है। मैं एक बात कहती होती हूँ और मुझे लगता है कि वो नियर टू फैक्ट है, नियर टू रियलिटी है, कि मेराज का सफ़र अगर मस्जिद अक्सा से जाए बग़ैर शुरू नहीं होता, इंसान को अरूज मस्जिद अक्सा से गुज़रे बग़ैर नहीं मिलेगा। इंसानों में से बेस्ट इंसान सैयदुल बशर, इंसानों में से सिर्फ एक प्रिविलेज्ड इंसान जिसको मेराज नसीब हुई, अल्लाह बुलंदियों पर अरूज पे ले गया, वहाँ जहाँ फरिश्ते के भी पर जल जाते हैं सिदरतुल मुंतहा के पास, वहाँ से भी आगे ले गया। और लेकिन वो सफ़र शुरू कहाँ से होता है, मस्जिद अक्सा से शुरू होता है। अगर इंसान तरक्की चाहता है, रब के यहाँ मकाम चाहता है, अगर बुलंदियाँ चाहता है, इस दीन का गलबा इस दुनिया में चाहता है, तो वो मस्जिद अक्सा की फ़तह के बग़ैर और मस्जिद अक्सा का ख्याल किए बग़ैर वो रास्ता नहीं मिलेगा। और नहीं मिला। अल्लाह ने फिर जूइश हिस्ट्री सुनाई है अगली आयतों में। आतैना मूसल किताब वजअलना हुदल लिबनी इसराइल, किताब दी और उस किताब को गाइडेंस बना दिया बनी इसराइल के लिए। अल्लाह तत्तखिज़ू, गाइडेंस में से सबसे मेन की गाइडेंस क्या थी, अल्लाह के सिवा किसी और को अपना कारसाज ना समझ लेना, किसी और को प्रायोरिटी ना बना लेना, किसी और से डर मत जाना। हाँ, ज़ुर्रियता मन हमलना मा नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। तो इंसानियत की बात शुरू हो रही है, तो बनी इसराइल की बात से पहले अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम याद दिलाया। वक़ज़ैना इला बनी इसराइल, और हमने फ़र्ज़ कर दिया, लिख दिया बनी इसराइल के मुकद्दर में, किताब में, फ़िल किताबी लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन, तुम 2 बार ज़मीन में फ़साद करोगे, वला तालुन्ना, 2 बार उखेड़ दिए जाओगे और 2 बार तुम्हें बुलंदियाँ नसीब होंगी, उलुवन कबीरा। तो थोड़ी सी जूइश हिस्ट्री मैं बता देती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको बहुत कम वक्त में बताऊँ। 4:30 तक तो टाइम है ना, आप में से कोई इस दौरान उठ के जाना चाहे, क्योंकि फिगर्स के साथ होती है हिस्ट्री, मैं भूल सकती हूँ, तो आप मजलिस के ख़ात्मे की दुआ पढ़ते हुए प्लीज़ चले जाइएगा। तो बाकी जो लोग सुनना चाहें तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं कम से कम वक्त में बताऊँ। बनी इसराइल को 2 अरूज नसीब हुए, कुरान कह रहा है, और 2 बार उनको तबाही का सामना करना पड़ा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम और बनी इसराइल में ऐसी मुशाबहत है, हमारी कौम में और बनी इसराइल में, जैसे शूज़ के पैर को एक पाँव को दूसरे पाँव से मुशाबहत होती है। दोनों लग रहे होते हैं कि वो राइट पाँव में फिट आएगा और वो लेफ्ट में आएगा, लेकिन अगर दोनों को सामने से देखा जाए बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हत्ता कि वो किसी बिल में घुसे तो तुम भी वहाँ ज़रूर घुसोगे। जब अल्लाह उनको कह रहा है कि 2 अरूज और 2 ज़वाल हैं, तो इसका मतलब है हमारे साथ भी वही कुछ होने वाला है, या हमारे साथ पास्ट में वही कुछ हो चुका है। इसलिए बनी इसराइल की हिस्ट्री और पूरा कुरान हज़रत मूसा के किस्सों से क्यों भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हज़रत मूसा रिप्रेजेंट करते हैं बनी इसराइल को। अल्लाह उनसे बात करता है, उनसे बात करता है, मकसद हमसे बात करता है कि जो जो कुछ उन्होंने किया वो तुम ना कर लेना। अब बनी इसराइल ने पहला अरूज देखा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में। वो कैसे, ये आए हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र में। हमने सूरह यूसुफ में पढ़ा, अपने भाइयों को उन्होंने बाद में बुलवाया था कनान से कि आके यहाँ पर बसें। पहला इनका बसना मिस्र में यही था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए। 12 भाई थे तो इनके 12 कबीले हुए, 12 कबीले हुए जो आपस में कुछ अरसे तक तो ठीक रहे, लेकिन उनके 600 साल बाद या 500 साल बाद ऑलमोस्ट ये वहाँ पर मगलूब हो गए। जब मगलूब हो गए हैं तो फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा इनको वहाँ से निकालने के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको मिस्र से निकाल के फ़लस्तीन की हुकूमत देना चाहते थे। अल्लाह ये चाहता था ना, मस्जिद अक्सा जिस जगह है उसको फ़लस्तीन कहते हैं। ये भी अरब टेरिटरी है, लेकिन ये बहुत ज़रखेज़ और यूरोप जैसा क्लाइमेट है, यहाँ पर अंगूरों की बेलें बहुत होती हैं। तो इन लोगों ने कहा था कि हम नहीं लड़ते मूसा, तुम और तुम्हारा रब, तो जिसकी वजह से हज़रत मूसा की ज़िंदगी में इन्हें अरूज नसीब नहीं हुआ। ये लोग फ़िरौन से तो निजात पा गए, लेकिन ये फिर सहराए सीना में भटक गए। मैं जो पाकिस्तानियों के बारे में कहती होती हूँ कि हमारी रिजेम्बलेंस वही लगती है। पाकिस्तान तो हमने बना लिया कलमे के नाम पे,
لیکن ہم خود مسلمان نہیں رہے, سوری ٹو سے. ہم بےمان, ذخیرہ اندوز, چور, ڈاکوؤں میں تبدیل ہو گئے ہیں. ایز اے نیشن ایک ہرڈ بن گئے ہیں کہ جانوروں کا گروہ ہے جو جس کا جتنا بس چلتا ہے دوسرے کو لوٹ لے کھا لے. پھر ان کو اللہ نے صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون ان کے شاگرد تھے, یا ان کے بعد پیغمبر ہوئے. قرآن ان کا نام نہیں لیتا, بٹ اسرائیلیات میں ان کی کتابوں میں ان کا نام یوشع بن نون ہے. یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں, جیسے وہ سورۃ بقرہ میں وہ واقعہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر, تو اللہ نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا. طالوت علیہ السلام کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے. ہی واز اے شیفرڈ بوائے, وہ تب بھیڑ بکریاں چرانے والے ایک چھوٹے سے چرواہے تھے. وہ آ کے انہوں نے پتھر مارا تھا جالوت کے جو جا لگا تھا, اور وہ مر گیا تھا. تو وہ مین آف دی میچ اور ہیرو بن گئے. تو ان لوگوں نے ان کو بڑی عزت دی. حضرت داؤد علیہ السلام نے 50 سال ان پر ایز اے خلافت گورنمنٹ کی ہے. ان کو اللہ نے نبوت بھی دی, ان کو اللہ نے بادشاہت بھی دی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی عطا کی. دیر از سم تھنگ رانگ, کچھ ہے؟ اچھا, تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام, انہوں نے بھی پھر حکومت کی. یہ تقریباً 90 پلس ایئرز ہیں جو 100 سال بنتے ہیں جو خلافت کے. یہ ان کو پہلا عروج ملا ہے بنی اسرائیل کو. وہاں سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر آباد ہوئے, پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات ملی, پھر صحرائے سینا, اور پھر حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں پھر ان کا بادشاہ مقرر ہونا, اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو گورنمنٹ میں 100 سال. حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. انہوں نے وہ سلطنت اور حکومت 2 بیٹوں میں تقسیم کر دی. ساؤدرن پارٹ کا جو کیپٹل تھا وہ یروشلم تھا, اور ناردرن کا اسرائیل تھا. یہ نام اسرائیل کیوں چلا آ رہا ہے اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت یعقوب کے بیٹے کہلاتے ہیں نا بنی اسرائیل. تو وہاں پر جب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو پھر یہ آہستہ آہستہ دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے. ان کا پہلا ڈاؤن فال آیا ہے عراقیوں کے ہاتھوں, بیبلینس کے ہاتھوں. ان کا بادشاہ تھا بخت نظر, نبو کا نظر بھی جسے کہتے ہیں. وہ اگر کسی نے ہسٹری پڑھ رکھی ہو تو وہاں پر مل جائے گا بکس میں. وہ آیا ہے اور پھر اس نے ان کو تباہ کر دیا ہے. مسجد اقصیٰ کو بھی ڈھایا ہے, تعمیر کی ہوئی کو. پہلا رائز حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور. پہلا فال عراقیانس کے ہاتھوں, بیبلینس کے ہاتھوں. غیر تہذیب یافتہ, مطلب جو مہذب قومیں نہیں تھیں, ان کے ہاتھوں ان کا پہلا ڈاؤن فال ہوا ہے. اس کے بعد ان کو دوبارہ عروج ملا حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں. اور عزیر علیہ السلام کو پڑھنے کے بعد قرآن ان کا قصہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ 100 سال کے لیے سو گئے تھے, اللہ نے سلا دیا تھا, ان کے اوپر موت طاری کر دی تھی, وہ کھڑے ہوئے تھے. وہ قصہ مجھے نہیں یاد کس صورت میں ہے, ہم پڑھا ہے یا آگے آنا ہے, آئی ڈونٹ نو. جی سورۃ کہف میں ہے. اچھا چلیں, آپ کو پتہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ قصہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. اور حضرت عزیر علیہ السلام کی تبلیغ کو جب میں نے پڑھا نا, میں نے ان کی ہسٹری پڑھنا شروع کی, تو ان کا تبلیغ کا میڈیم پتہ کیا تھا؟ اس دور کے علماء, اس دور کے شیخ کیا کہہ رہے تھے ہمارے مسجدوں کی طرح, امریکہ برا ہے, امریکہ برا ہے, امریکہ برا ہے, امریکہ کے خلاف جہاد کرو. دوسروں میں اپنی شکست کے اسباب دوسروں میں ڈھونڈو, دیکھو تم کس کی وجہ سے ہار گئے. وہ لوگوں کو جہاد پہ اکسا رہے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا تھا اپنے آپ کو درست کرو, اپنے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کو ختم کرو, تبدیلی لے آؤ, اللہ تمہیں حکومت دے دے گا. تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑو گے, گورنمنٹ حاصل بھی کر لو گے, تو تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا. ہم نے لڑ کے جانے دے کے پاکستان حاصل کیا تھا نا, 2-2.5 لاکھ بندہ شہید ہوا ہے, دریاؤں کے پانی سرخ تھے. کتنی ہی عورتوں نے عزتوں کی قربانی دی ہے, کتنے ہی سکھوں کے گھر مسلمان عورتوں کے بچے ہیں, آج بھی ہیں. لیکن اس کے بعد کیا حشر ہوا؟ جب آپ اندر سے تبدیل نہیں ہوتے اور آپ کو کوئی ٹیریٹری مل بھی جاتی ہے کہ یہاں اسلام اپلائی کر دیں, تو پھر یہی حشر ہوتا ہے. پھر صحرائے سینا کی طرح حشر ہوتا ہے کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑ لو. آج ہمیں جان اتنی پیاری ہو گئی ہے. کل ہم پاکستان تک ٹریول کرنے کے لیے, چند 100 کلومیٹر چلنے کے لیے اپنی جان مال کی قربانی, عزتوں کی قربانی دینے کو تیار تھے. آج ہم کہتے ہیں اڈے دینے کے لیے بھی سب سے پہلے پاکستان, کیونکہ جان پیاری ہو گئی ہے. ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام یہی تبلیغ کر رہے تھے, اور ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کنویں میں لٹکا رکھا تھا اور ان کو پنش کیا تھا کہ عزیر کہ تم اپنے باز بند کرو, ہم یہ نہیں سننا چاہتے. ہمیں تو ایسا ابھارنے والا اور موٹیویشنل اسپیکر چاہیے جو ہمیں فوراً سے پہلے بخت نصر کے خلاف اعلان جہاد کرے, اور ہم جہاد کر کے قابو پا لیں اور ہم اپنی کھوئی ہوئی ٹیریٹری میں چلے جائیں. اچھا, جب وہ گیا نا ادھر سے مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے بعد, وہ ان کے آدھے لوگوں کو, مطلب اگر یہ
20,000 थे तो वो 10,000 लोगों को अपने साथ ले गया, अगर ये लाख थे तो वो 50,000 को साथ ले गया गुलाम बना के। ये इराक़ में इन्होंने ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में इनको अरूज नसीब हुआ है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये जो इनके पास वो सब कुछ खो चुका था, तौरा की पार्ट हो चुकी थी, वो उन्होंने उस स्क्रिप्चर को भी इकट्ठा किया है। अच्छा, बाद में इनको ना वो ईरान और इराक़ आपस में लड़ रहे थे। कभी सुना है ईरान और इराक़, हमारे बड़ों की ज़िंदगियों में भी कोई वॉर के बारे में सुना हो? ये रिजेम्बलेंस मैं आपको अभी बताती हूँ, जब ये आप हिस्ट्री बनी इसराइल की सुन लेंगे फिर हमारी सुनिएगा। ईरान इराक़ वॉर हुई तो ईरानी बादशाह, जिसे खुसरो परवेज़ कहते हैं, क्या खुसरो और बहुत से लोग कहते हैं ज़ुल्करनैन, वो जो 2 सींगों वाले थे बादशाह, तो उनकी आपस में जब लड़ाई हुई है तो ईरान ने फतह पाई है, तो ईरानियों ने क्या किया, इनको रिलीफ दिया है, यहूदियों को या ईसाई हो या हज़रत ईसा तो खैर उस टाइम तक नहीं आए थे, यहूदी ही थे ये लोग, मुसलमान उस टाइम के, तो वो उनको रिलीफ दिया कि तुम अपने घरों को जा सकते हो। इनको आज़ादी नसीब हुई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इसको दोबारा तामीर किया, मस्जिद अक्सा को, वो जो बख्त नसर ढहा के गया था, इनके दीन को दोबारा इकट्ठा किया है, इनको अखलाकी बुराइयों से निजात दिलाई है, इस तरह की तबलीग करके इनके अंदर रिफॉर्म्स पैदा किए हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बाद फिर आहिस्ता 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 फिर ये दोबारा उसी चीज़ पर आ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 70 साल पहले दोबारा इनको डिस्ट्रक्शन हुई है। पहला अरूज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, पहला ज़वाल इराकियों के हाथों, दूसरा अरूज हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हाथों, और दूसरा ज़वाल रोमन्स के हाथों। ग्रीक पीपल्स ने इनके ऊपर, जितना भी यूरोप हो गया आप समझे, रोमन्स के हाथों इन्होंने शिकस्त खाई है। बादशाह का नाम टाइटस था और उसने मस्जिद अक्सा के साथ वो किया है, यहाँ पर कुरान की आयत में मैं पढ़ूंगी आपको समझ आएगी, कि कोई स्पेस ऐसी नहीं थी, कोई 2 ईंटें आपस में जुड़ी नहीं उसने रहने दी। वो ताबूत सकीना उठा के ले गए, वो उन्होंने मस्जिद अक्सा को गिरा दिया, और तब से लेकर मस्जिद अक्सा आज उसी हालत में मौजूद है। 2 अरूज 2 ज़वाल। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल पहले की दास्तान है। उसके बाद इनके लास्ट प्रॉफिट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी ये उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये डेफिनेट है क्योंकि हमें भी अहादीस से पता चलता है। कुछ लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन होती होगी तो हुआ करे, मुझे नसर नहीं ताबूत सकीना फेंक दिया था, जी ऐसा ही है उठा के जी, कि ये कुछ ऐसी चीज है। तो बाद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने, तो बाद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का कंपाइल किया, यस कंपाइल किया उन्होंने। आपका मुताला बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, वरना मेरे से ज़्यादा पुअर यादाश्त का बंदा कोई नहीं है इस महफिल में। अच्छा, फिर ना वो टाइटस के दौर में जो इनका डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको रिवाइवल नहीं दे सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल कहती है कि वो मैं बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों के लिए आया हूँ। वो तौरा को ही दोबारा रिफॉर्म्स करके इनके ऊपर अप्लाई करने के लिए आए थे, लेकिन वो इनको अरूज नहीं दिला सके। लेकिन हाँ, ये है कि अल्लाह ने ये वादा कर रखा है इनसे भी, जैसे हमसे कर रखा है, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमानों पर जिंदा उठा लिए गए वो दोबारा आएंगे। देन उन्हीं की क़यादत में दज्जाल मारा जाएगा। उनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, कहीं वो अबव है, मतलब किसी ऐसे प्लेनेट पर तो हैं जो टेक्नोलॉजी में हमसे एडवांस हैं। वो कहते हैं उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, वो दज्जाल जो है वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दज्जाल सुनो भी सही तो उससे आर्ग्यू ना करना, तुम उसको गलत साबित करते या पहचान करते करते अपना दीन ईमान खो बैठोगे। तो इतनी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वर्ड दजल से, दजल मीन धोखा है, वो कैमोफ्लाज होगा कुछ ऐसी चीज़ों में। जब ये हदीस में सुनती हूँ कि सबसे ज़्यादा उसके फॉलोअर्स में औरतें और उलमा होंगे, चले औरतों को सोचते हैं घर में बैठी हैं, वो अपनी घरेलू सियासत में मशगूल हैं, उलमा उस पर बैत करने वाले होंगे, मतलब उसका डिस्गाइज तो कुछ ऐसा ही होगा ना। ये बड़ी हॉन्टिंग किस्म की ये बात है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अच्छा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में इन्हें फ़ाइनल अरूज हासिल होगा और पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ देयर रेवोल्यूशन। अब चलते हैं मुसलमानों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो कुछ उनके साथ हुआ तुम्हारे साथ हुआ। पहली खिलाफत अला मिनहाजुल नबुव्वा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही, वो ज़िंदगी के बाद उनके कैसे कायम हुई खिलाफत राशिदा रही इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक। बस उसके बाद पहला अरूज अरबों के हाथों, पहला जवाल तातारियों के हाथों, अनसिविलाइज्ड कौम, इराकियों की तरह, बेबलियंस की तरह। और आया होती है योरश तातार के फसाने से, के पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। शुक्रिया। तो वो
वो फिर तातारियों को ही अल्लाह ने, ये तुर्क कौन है, यही तातारी, कोई चंगेज़ी तुर्क, कोई तैमूरी तुर्क, ये बर सग़ीर पाक हिंद में जिन्होंने की है गवर्नमेंट, मुग़लों ने, ये वो तुर्क थे, तैमूरी तुर्क थे, और कोई सल्जोकी तुर्क और कोई उस्मानी तुर्क। सल्तनत उस्मानिया की सूरत में मुसलमानों को दूसरा अरूज हासिल हुआ। पहला अरबों के हाथों, पहला डाउनफॉल तातारियों के हाथों, अनसिविलाइज्ड कौम के हाथों। दूसरा अरूज मिला है जो हमें दुनिया में मकाम मिला है उस्मानियों के हाथों, उन्हीं तातारियों के हाथों। और उसके बाद हमारा दूसरा डाउनफॉल जो आज तक चल रहा है वो किसके हाथों हुआ है? ऑल यूरोपियन अक़वाम, रोमन्स के हाथों। सेम वही स्टोरी है। आप हिस्ट्री को सदियों में पढ़ना तो शुरू करें, उसको उसके अपने ग्लास के नीचे तो ले आएं, देखें तो सही कितनी रिजेम्बलेंस है। 1924 में सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ है और उसके साथ ही मुसलमान मुल्कों में बट गए हैं। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटों ने अलग-अलग मुल्क बना लिए थे। ऊपर से कोई देखने वाला देखता था तो वो कहता था ये सब मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से कबीले 12 के 12 आपस में लड़ रहे थे। सरहदों की लड़ाई, अपने वसाइल की लड़ाई। आज तमाम मुसलमान देखने को दुनिया में बड़ी आबादी है मुसलमान मुल्कों की। आपको पता है फ़लस्तीन के इर्द गिर्द सारे अरब बैठे हैं और इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ क्या करता है? उन सब के सामने, आंखों के सामने, ऑन डिस्प्ले। एंड दिस इज हैपन। फिर क्या हुआ है? मुसलमान क्या हुए हैं? क्लोनाइज हो गए हैं पूरी दुनिया में। कोई फ्रांस के हाथों, सारा अफ्रीका फ्रांसीसी अक़वाम के हाथों हुआ है। सूडान है, यहाँ पर आज भी कहते हैं उनके जो नेचुरल वसाइल हैं, सो हीरे की कानें हैं उनके पास, अफ्रीकन्स के पास। कितने खूबसूरत वो जंगल हैं, सारी वाइल्ड लाइफ वही है, लेकिन उनके वसाइल पर गवर्नमेंट कोई और कर रहा है, हुकूमत कोई और कर रहा है। पहले कलोनियल पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया टूटने के बाद मुसलमानों पर जो जवाल आया है, वो जैसे टाइटस ने इनकी ईंट के साथ ईंट बजाई थी, या बख्त नसर इनके वो ताबूत सकीना ले गया था, तो हमारे साथ वही कुछ हुआ है। वी आर नाउ स्कैटर्ड हर्ड। हम में से हर एक, हमारी OIC है, इस्लामी कौंसल भी है, लेकिन कुछ चूं भी नहीं करता कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो जाए। वो क्या था जो हमारे यहाँ भी फिर कोरोना के दिनों में हुआ था, वो क्या कहते हैं, लॉकडाउन, यस, क्वारंटाइन किया गया उन्हें सबसे पहले। फ़लस्तीनी जब भी इसराइल अपना डे ऑफ इंडिपेंडेंस मनाता है तो फिर वो सबसे पहले इसराइली फ़लस्तीनी बच्चों को ज़िबा करता है। मैंने वीडियोस देखी हैं कि पाँव के बूट के साथ वो गर्दन पे पाँव देकर खड़ा है और बच्चे ने तड़पते तड़पते जान दे दी है। कोई एक वीडियो है जो हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचती है, लेकिन हमारे कान पे जो भी नहीं दिखती। हमारी अपनी आफिया से देखी हम उठा के दे देते हैं, और हमें उन टॉर्चर गोंतानामो के टॉर्चर सेल से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, बनी इसराइल की तरह, एज द केस ऑफ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ जो उन्होंने सलूक किया। आज हमारा मौलवी क्या कहता है? सारा इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाओ, इसराइल पे लगाओ अपनी तबाही का। आप इखलाकी तौर पे कहाँ खड़े हो? आप रोज़ा रख के सिर्फ खाने पीने से रुकते हो। आपको रोज़े की भी सिर्फ फिजिकलिटी पता है। रोज़ा तो आपको प्रैक्टिस कराता है कि झूठ भी नहीं बोलना, गीबत भी नहीं करनी, गाली भी नहीं देनी, धोखा भी नहीं देना, वादे भी पूरे करने हैं। आप अफ्तारी करने के बाद ये सारे काम करते हैं और अफ्तारी करने के पहले भी करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एग्जाम्पल बना दी गई, 2 औरतें आईं, रोज़ा लग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करवाई? गोश्त के टुकड़े। गीबत के बारे में कुरान कहता है कि मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। आपकी दूसरों की इज्जत ऐसे मिनट में उतारते हैं। फलां की बेटी ऐसी है, फलां इतने देर से इतने घंटे बाद किसी के साथ आई थी, वो जिसके साथ आई थी मोटरसाइकिल पे, वो लड़का पता नहीं कौन था। आपकी ज़बान से बात निकलती है, दूसरे की इज्जत का जनाजा निकल जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप मुर्दार खा रहे होते हैं, और आप कहते हैं नहीं हम मुर्दार नहीं खाते, हम तो ताज़ा जानवर अपने सामने ज़िबा करा के खाते हैं, परिंदा भी ज़िबा करा के खाते हैं, और आप मुर्दार खाते चले जाते हैं। ये एक गुनाह है। हक खाना तो फिर और आगे बात है, यतीम का माल खाना तो और बात है। यतीम पे रोब रखना, उसकी ज़िंदगी के फैसले करना, वो और गुनाह है। वो हमें लगता है किसी और ने किए होंगे। बुल्ले आसा मरना ना ही, गोर पिया कोई और। वो मैं नहीं हूँ जिसने मरना है। हाँ, ये सोचा हुआ है हमने। अल्लाह कह रहा है वही सब कुछ होगा। 1924 से पहले कलोनियल निज़ाम था बरसगीर पाक में। आप जानते हैं टीपू सुल्तान के दरबार में फ्रांसीसी भी होते हैं, निज़ाम हैदराबाद के पास अंग्रेज़ भी आते हैं, लेकिन हमने गुलामी कबूल की। यहाँ 350 साल हुकूमत करने के बाद मैं आज सोचती हूँ हमारे अंदर क्या लीडर पैदा होने बंद हो गए थे? उस टाइम भी तो कोई था ना, तब क्यों? यही मट्टी थी ना, ये टीपू सुल्तान क्यों पैदा कर रही थी? आज ये गुलाम क्यों पैदा करती है, जो रोटी पर कंप्रोमाइज कर जाते हैं, जो नाली पक्की कराने पर वोट दे देते हैं? क्यों हम
हमारे अंदर ये कंप्रोमाइज़ और ग़ुलामी की सिफात पैदा हो गई। हाँ, मुझे फिर कुरान जवाब देता है कि बनी इसराइल भी ऐसे हो गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने गारंटी दी थी, जाओ फतह नसीब होगी, फ़लस्तीन में रहना बसना नसीब होगा, हुकूमतें नसीब होंगी। कह रहे थे नहीं नहीं मूसा हम तो नहीं लड़ सकते, सॉरी। तालूत अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ भी नहीं लड़े। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे जो आगे आके उन्होंने वो किया था, हीरो गिरी दिखाई थी। तो फिर कॉलोनियल निज़ाम के बाद एक और दाऊदी निज़ाम है जो अब हमारे यहाँ राइज है। हम पपेट्स हैं, पपेट्स की तरह। जब रोमन्स एम्पायर के पपेट्स बना दिए गए थे बनी इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद, ये लोग सारी दुनिया में, कॉलोनियल निज़ाम तो नहीं था लेकिन हुक्मरान असल में रोमन होते थे, लेकिन जो रोमन वफादार इन्हीं में से होते थे उन्हीं को वो बिठा देते थे। आज हमारे यहाँ हुक्मरानों के नाम नवाज शरीफ होते हैं, मोहम्मद शरीफ आर्मी चीफ भी हो सकते हैं, और भी किसी मुल्क के सदर का नाम अब्दुल्ला भी हो सकता है, अब्दुर्रहमान भी हो सकता है, लेकिन असल में वो पपेट्स होते हैं जो उनके मफादात का ख्याल करते हैं, जो अपने आवाम पर उतने ही टैक्स लगाते हैं जितनी वो गवर्नमेंटें चाहती हैं। और हमें भी दूसरा अरूज कब नसीब होना है? तीसरा जो फाइनल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद। तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धरें, तब तक जाके कोई किसी जगह हम वो हाइबरनेट हो जाए, मतलब वो सो जाएं, लंबी नींद सो जाएं, इंतज़ार करें, या उलमा के साथ बैठकर बहसें करें कि वो कब आएंगे, उनके ईयर्स गिना करें। उससे पहले जो काम करना है, हमने अपने आप को चेंज करने का काम करना है, पानी लगाने का काम करना है, बीजों की हिफाजत का काम करना है कि वो अच्छे दरख्त बने। मुसलमान तो हमेशा एक्टिव रहेगा। सो दिस इज़ द ज्यूइश हिस्ट्री रिजेंबल्स टू मुस्लिम हिस्ट्री। 1924 के बाद आज तक मुसलमान हर जगह मार खा रहे हैं, हमारी मईशत उन्हीं के कंट्रोल में है। और फिर हमें लगता है गालियाँ देते हैं अमेरिका को। अभी कुछ वीडियोस पता नहीं मैंने देखी हैं उस पर, अमेरिकन परचम को जलाने की। इंडियन परचम को जला दो, ज़्यादा गुस्सा निकालना है तो इंडियन परचम को जला दो, मोदी का पुतला बनाओ और जला दो। बेबस लोगों जैसी हरकतें करो, प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो। किसी पैगम्बर ने भी कभी प्रोटेस्ट किया है? किसी पैगम्बर ने प्रोटेस्ट भी सिखाया है आपको? नहीं। आप तो इस दुनिया में हर मजलूम को उसका हक दिलाने के लिए भेजे गए हैं, जालिम का हाथ पकड़ने के लिए भेजे गए हैं। सो दिस इज़ हिस्ट्री ऑफ मेराज। तो इसीलिए मैं कहती होती हूँ मेराज का सफ़र आसमानों का तो बाद में है, पहले मस्जिद अक्सा के सहन में जाना पड़ता है, वहाँ जाके इमामत करानी पड़ती है कि अब दुनिया की लीडरशिप मुसलमान करेगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत लीड करेगी, दुनिया को फॉलो नहीं करेगी, पीछे पीछे नहीं चलेंगे, बल्कि दुनिया इनके पीछे चलेगी। ऐसे रोल मॉडल बनेंगे। और आप ऐसे रोल मॉडल हैं। तबलीगी जमात के साथ काफ़ी ताल्लुक़ रखा तो वो कारगुजारी सुनाया करते थे। एक बंदे को मुसलमान करके ले आए, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे उतरा, जो पानी पीने की जगह थी वो गिलास जंजीर से बंधा हुआ था। उसने कहा गिलास कहाँ जा सकता है, इसको जंजीर से बांधने की क्या ज़रूरत है? गिलास तो साथ रखा होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई कॉफ़ी के वो प्लांट होते हैं तो साथ ही कप्स होते हैं। उन्होंने कहा गिलास इसलिए बांध रखा है कोई चुरा के ना ले जाए। उसने कहा ये दीन है तुम्हारा? मैं जहाँ अपने मुल्क में था, मैं हिंदू था या मैं ईसाई था, तो हमें तो गिलास बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि हर किसी के सामान की खुद वो खुद हिफाजत नहीं करेगा, कोई दूसरा उठाएगा ही नहीं। वहाँ तो कहीं दुकानों पे ताले नहीं लगाए जाते, क्लोज का बोर्ड लगाया जाता है, वो जो शीट होती है उसको उल्टा किया जाता है, ओपन एंड क्लोज, बस दैट्स ऑल। शीशे की दुकानें होती हैं लेकिन महफूज रहती हैं। आपको तो ताले लगाने पड़ते हैं, फिर शटर डालने पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर ताले लगाने पड़ते हैं, फिर गेट के बाहर एक गार्ड खड़ा करना पड़ता है, उसके बावजूद डकैतियाँ हो जाती हैं। आप ये इस्लाम रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी तरफ दावत देंगे, वो फिर अगले ने कहना है छोड़ो बेबिली चुआ लंडोरा ही भला, हम जिस दीन में पहले थे वो बड़े ठीक थे। अगर मुसलमान होने का मतलब ये सब कुछ है तो छोड़ दो। जो न्यू मुस्लिम रिवर्ट मुस्लिम के साथ मेरी आयशा के साथ बात हुई तो उसने कहा मैं नहीं, मेरे साथ बहुत से लोग आए थे जब हमने इस्लाम कबूल किया था, वो वापस चले गए मुसलमानों के अखलाक और मुसलमानों के अमाल देखकर। दे से गुड बाय टू इस्लाम। आपके अमाल की वजह से लोग अल्लाह के रास्ते से रुक रहे हैं, हालांकि आप रिस्पॉन्सिबल थे लोगों को अल्लाह की तरफ लाने के, और अभी तक इस पर गौर व फिक्र करने को भी तैयार नहीं है। हाँ, सूरत इसरा की भी आयत, उस सूरत इसरा में किस्सा आदम अलैहिस्सलाम है।
आयत नंबर 61, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। उसने कहा कि इसको इसलिए सजदा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर उस दफ़ा था सलसाल, वो गारे वाली मिट्टी, खलक़तहु तीना, तूने मिट्टी से बनाया, डर्ट या गारे को कहते हैं शायद ये भी, और क्योंकि तूने इसे इज़्ज़त दी है तो मैं क़यामत के दिन तक इसे बहकाता रहूँगा। यहाँ पर भी ये किस्सा है, और यहाँ एक वर्ड था जिसका मैंने, अब मेरे नोट्स को पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पता नहीं मैं किस किस तरह से बना लेती हूँ। अच्छा, ईरान और इराक़ की जंग सुनी है, हमारे बड़ों के दौर में होती रही है, बिल्कुल उन्हीं की तरह, इज़राइलियाट्स की तरह। हाँ, एक गारंटी है यहाँ पर अल्लाह ताला की आयत नंबर 65 में कि आदम अलैहिस्सलाम को क्यों नॉमिनेट किया था। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर तेरा बस नहीं चलेगा। कल बात हुई थी, कल या परसों की आदम में, मेरे मुखलिस बंदों पर, यहाँ अल्लाह ने बात ही ख़त्म कर दिया, सिर्फ मेरे बंदे, मेरे बंदों पर तेरा बस नहीं चलेगा। व कफ़ा बेरब्बे का वकीला, उनके लिए उनका रब काफ़ी है हिफाजत के लिए, और वो अपने रब पर ही भरोसा करेंगे। फिर अल्लाह ने कहा कि कश्तियाँ कैसे चलती हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, ये आयतें हैं। फिर नमाज किस पैन अल्लाह ताला ने बताए हैं, टाइमिंग बताई है आयत नंबर 78 से। आके मिस्सलाता लिदलूक शम्स इला गसक लैल व कुरान अल फजर, मैंने इसको अंडरलाइन इसलिए कहते हैं, एक तो नमाज के टाइमिंग है और कुरान फजर। जैसे कुरान का रमज़ान के साथ कोई ख़ास कनेक्शन है ना, फजर के टाइम के साथ भी ख़ास कनेक्शन है। कुरान ये बताता है, कुरान कहता है गौर व फिक्र करो, हर चीज़ में कनेक्शन तलाश करने की, रिलेटिविटी तलाश करने की कोशिश करो। कुरान अल फजर, फजर के टाइम पढ़ो। आप असर के टाइम पढ़ेंगे, आप जोहर के टाइम पढ़ेंगे, आप अशा के टाइम पढ़ेंगे, कोई और असर होगा, इस टाइम पढ़ेंगे कोई और होगा, ये कुरान बता रहा है खुद। इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, कुरान फजर के टाइम गवाही की सलाहियत रखता है, वो काउंट करेगा, वो जो आपके हक में शहादतें देगा वो फजर के टाइम पढ़ा हुआ कुरान देगा। व मिनल लैल फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, और रात के टाइम तहज्जुद पढ़ा कीजिए, नफले नियत करके पढ़ा कीजिए। नाफिलतन लक, वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें होंगी। असा यब असका रब्बुका, वो बड़ी उम्मीद है कि ये कुरान फजर और तहज्जुद की नमाज आपको क्या अता करेगी, मकाम महमूद, आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो स्पेसिफिक वो मकाम मिलना है ना, मकाम महमूद। महमूद का मतलब होता है तारीफ़ किया गया, जहाँ सब आपकी तारीफ़ करेंगे, जहाँ आप लीडर बन जाओगे, जहाँ आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को ये दावत है कि वो इन्हीं दो तरीक़ों से, कुरान की दावत के साथ और तहज्जुद की नमाज के साथ, तहज्जुद में अल्लाह से मांगना है और कुरान में उसी चीज़ को अप्लाई कर देना है, वहाँ से एनर्जी लेनी है, स्टोर करनी है, अपनी बैटरियाँ चार्ज करनी है रातों को, और दिन को अल्लाह के काम में लग जाना है कुरान की दावत के। तो फिर अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें दुनिया आखिरत में बाइज़्ज़त मकाम अता करूँ। अल्लाह करे हम इन्हीं लोगों में शामिल हों। हाँ, वकुर रब्बे अदखिलनी, दुआ है मेरी तो फेवरेट है, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़ वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पे यहाँ पर हिजरत मदीना, क्योंकि मेराज के मौके पर जो मस्जिद अक्सा लेकर गए, रास्ते में मदीना भी दिखाया कि ये आपकी प्लेस होगी जहाँ पर खिलाफत कायम होगी, आपको ये शहर दिखाया गया, और ये दुआ की गई, मंगवाने का तरीका सिखाया गया कि इस तरह से अपने रब से मांगो कि मुझे अच्छे तरीके से निकाल और अच्छे तरीके से जहाँ पहुँचा वहाँ पर ले जाओ, और मेरे मददगार भी लोग पैदा कर दे। और आगे आयत है कुरान के बारे में 82 वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, और जो कुछ भी कुरान में नाजिल हुआ है ना, ये शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा, और यही कुरान जो अल्लाह पर बिलीव करता है, अल्लाह के कहने पर गौर व फिक्र करता है, उसके लिए शिफा बन जाता है। उसके दिल में डिप्रेशन है, उसको परेशानियां हैं, उसको बीमारियां हैं, उसके दिल को रोग लगे हुए हैं, उसको तो ये हील कर देगा। एट अ सेम टाइम कुछ लोगों के नुकसान बढ़ा भी देगा जो कुरान पे बिलीव नहीं करता, जो कुरान के मैसेज को परसीव नहीं करता। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा, अल्लाह हमें ज़ालिमों में ना करे। और फिर आगे आयत है कि आप जब हम इंसान को कुछ अच्छा तकलीफ़ में देते हैं तो वो हर तरफ से हमें पुकारता है और न वो एराज़ करता है, मुंह मोड़ लेता है जब हम नेमतें देते हैं, और जब हम उसे कोई तकलीफ़ देते हैं तो यऊस हो जाता है, मायूस हो जाता है। आगे जो आयत है मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, पीछे आयत ख़त्म हुई, सूरत ख़त्म होते हुए क्या थी कि तुमने अच्छे तरीके से दावत देनी है
ہدایت کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, ججمنٹل نہیں ہونا. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہر انسان ڈفرینٹ عمل کرے گا صراط مستقیم پر, ہر روڈ پر کسی کا. اللہ کیا کہتا ہے, دنیا میں کوئی بھی سفر ہم کرتے ہیں, چلیں آج یہ بات کیونکہ یہاں پر مجھے ریزمبلنس یاد آ گئی, مثال, دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں کس لیے, منزل پر پہنچنے کے لیے, ایسا ہی ہے. چھوٹا کریں یا بڑا کریں, ہم نے منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. ہم نے مری جانا ہوتا ہے, ہم نے لاہور جانا ہوتا ہے, اسلام آباد جانا ہوتا ہے, امریکہ جانا ہوتا ہے. ڈیسٹینیشن کے لیے ہم راستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, کتنی عجیب بات ہے, کتنی اپوزٹ بات ہے. اللہ کہتا ہے جب تمہیں موت آئے نا تو تم اس روڈ پر ہو, صراط مستقیم پر ہو. کہیں بھی اللہ نے یہ ورڈ یوز کیا جنت کا راستہ, جنت کے راستے کی طرف چلو. اللہ کہتا ہے صرف اس روڈ پہ جانا. ڈیسٹینیشن تو ہمیں بھی پتا ہے الٹیمیٹلی وہی ہے, لیکن اللہ کہتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تمہاری ڈیسٹینیشن وہ روڈ ہے. جیسے ہم یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شام کوٹ سے موٹر وے کو ہم کنیکٹ کریں گے, ہم اس روڈ پہ چڑھ جائیں گے. اللہ کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بعد میں چڑھا یا پہلے چڑھا اس روڈ پر. جس کو موت اس حالت میں آ گئی کہ وہ صراط مستقیم پہ تھا, وہ کامیاب ہو جائے گا. کتنی عجیب بات ہے. دنیا میں ڈیسٹینیشن ریکوائرڈ ہے اور اللہ کہتا ہے صرف اس راستے پر, اس روڈ کو کنیکٹ ہو جانا. اللہ شاہ کے ہر کوئی انسان مختلف قسم کے. اب کوئی کوٹ ادو سے چڑھے گا, وہاں سے موٹر وے جب اس کو لگے گی وہ وہاں سے موٹر وے پہ چڑھے گا. کوئی ملتان سے چڑھے گا, کوئی پنڈی بھٹیاں, پہلے جب موٹر وے نہیں تھی ہم لوگ پنڈی بھٹیاں سے موٹر وے جوائن کرتے تھے, یا کچھ لوگ سرگودا والی سائڈ سے جاتے تھے ہم لوگ, تو وہاں سے موٹر وے جوائن کرتے تھے. اور آج ٹوپر ٹیک سنگھ ہے, لاہور کے ساتھ شہر ہیں, فیصل آباد شہر ہے, درمیان میں شہر آ رہے ہوتے ہیں, نام میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو سارے شہر جب وہ اپنا اس روڈ کو کیا کہتے ہیں, وہ جب ہم موٹر وے چھوڑتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ہاں انٹرچینج. تو ڈفرینٹ انٹرچینج ہے. اللہ کہتا ہے ہر کسی کا انٹرچینج ڈفرینٹ ہوگا. کسی نے شراب چھوڑنے میں بڑی محنت کی ہوگی, کسی نے اپنے اخلاق بہتر کرنے میں بڑی محنت کی ہوگی, کسی نے کوئی گناہ اور کسی نے کوئی گناہ اور کسی نے کوئی گناہ, اور کسی کی زندگی کی کون سی آزمائشیں, جیسے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہے, ہر انسان کے ڈفرینٹ ہے, شاکلت ہے. یہ کائنڈز ہیں, لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ روڈ جوائن کرنا ہے. اور آپ کو روڈ جوائن کیے, چاہے 1 منٹ ہوا ہے آپ کو موت آ گئی ہے, تو اللہ کے ہاں تو آپ روڈ پہ کاؤنٹ ہوں گے نا. مقصد تو صرف ٹائمنگ کا ہے نا, کہ آپ اس ٹائم پہ چڑھ آئیں جب تک دنیا میں زندگی کی مہلت ہے. کتنا خوبصورت ہے اور کتنا مہربان ہے ہمارا رب, کہ وہ کہتا ہے بس اس روڈ پہ آ جاؤ, ڈیسٹینیشن وہ میرے ذمہ ہے, بس اس روڈ پہ آنے کو میں تمہاری کامیابی تصور کرتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ کل یعمل, انسانوں کو بتاؤ کہ ہر انسان وہ موٹر وے کو, وہ صراط مستقیم کو ڈفرینٹ حالات میں جوائن کرتا ہے. کوئی 10 سال سے اس پر ہے, اور یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کوئی 10 سال سے چل رہا ہے تو پھر کوئی چیز اس کو شیطان ڈسٹریکٹ کر کے نیچے نہیں اتار دے گا, اس کو وہ موٹر وے صراط مستقیم سے اتار کے کسی ایسے روڈ جو کھڈوں والے وہاں نہیں لے جائے گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی صرف اس بندے کی ہے کہ وہ موٹر وے پہ تھا اور اس ٹائم اس کا سفر ختم ہو گیا, بس دیٹس آل. اللہ کرے ہمارے اینڈ صراط مستقیم پر ہو. تو پھر ہر انسان ڈفرینٹ عمل کر رہا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. یہ بات بہت پاکستانی معاشرے کو سمجھانے کی ہے, اور ہمیں خود سمجھنا ہوگا اس بات کو, ہمیں کوئی اور نہیں آ کے سمجھائے گا. ہمارے پاس حضرت عزیر علیہ السلام والا آپشن بھی نہیں ہے. اب دنیا میں کسی نے نہیں آنا, ہم نے جو سمجھنا ہے خود سمجھنا ہے. کوئی پیغمبر نہیں آنے والا, کوئی فرشتے ہماری مدد کے لیے نہیں آنے والے. آپ کے رب کی قسم, آپ کا رب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے. اللہ جانتا ہے کون موٹر وے پر ہے, صراط مستقیم پر ہے یا نہیں ہے. تم کسی اور کے اعمال جج نہیں کر سکتے. آپ کسی اور ڈرائیور, کوئی بھی گاڑی چلانے والا, آپ میں سے کچھ ڈرائیور ہوں گے, کچھ ڈرائیونگ نہیں جانتے ہوں گے, لیکن اتنا جانتے ہوں گے کہ ڈرائیور اگر دوسری گاڑیوں کو دیکھے تو اپنی اسٹیئرنگ وہ کہیں اور جا کے مارے گا, ایکسیڈنٹ ہوگا اور کھائی میں گرے گا. اور صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے کہ جس کے نیچے پل صراط ہے. صراط تو کہتے ہیں اس راستے کو یا اس تلوار کو جو سیدھی ہوتی ہے, آلموسٹ. مجھے بالکل ایگزیکٹ لٹرل میں نہیں بھول گیا, میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھوں گی اور بتاؤں گی. تو ہم اگر دوسروں کی گاڑیوں میں سے جھانک جھانک کے دیکھتے رہیں گے, سائیڈ مرر میں سے, وہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے, وہ کیسے چلا رہا ہے, وہ تو کب سے موٹر وے پہ تھا, وہ اب آیا ہے, اس کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے, ڈیفینیٹلی آپ اپنا راستہ کھوٹا کر بیٹھیں گے, آپ اس راستے سے اتر جائیں گے. اللہ کہتا ہے دوسروں کے جج بنو گے. اللہ کہتا ہے کہ جو کسی مسلمان پہ تہمت لگاتا ہے, وہ عیب اس کے بارے میں کہتا ہے جو اس میں نہیں تھا, تو اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غالباً حدیث مبارک کے الفاظ ہیں, اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگی.
اور جو کسی عزت والی جگہ پہ جہاں وہ رہتا تھا، سہتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، وہاں اس کی عزت دری کرتا ہے، اس کی عیب دری کرتا ہے، تو اللہ اس کو اسی جگہ ذلیل کرے گا، اسی جگہ رسوا کرے گا جہاں وہ سب سے زیادہ فن خان صاحب بڑا اونچا وہ پرے پنچایت کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ فیصلے تم نے نہیں کرنے۔ اینڈ اس میں آیت سجدہ ہے 107 یا 109۔ اور آخری آیت قل اللہ اوید الرحمن، آخری دو آیتیں ہیں، اور اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایام ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ یہ نہ کرو کہ عرب کس طرح سے پروننس کرتے ہیں اور افریقن کس طرح سے کرتے ہیں اور اٹالین مسلمان کیسے بولتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کسی زبان میں قید نہیں ہوں۔ جب اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تمہاری قربانیوں کے نہ گوشت دیکھتا ہوں نہ خون۔ میرے پاس کوئی ریفریجریٹر نہیں ہے جہاں میں نے ڈیپ فریزر نہیں ہے جو تمہاری رانیں اسٹور کر کے رکھنی ہے۔ میں نیت دیکھتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم نے کپڑے کس رنگ کے پہن سکے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اسکن تمہاری کس کلر کی ہے، تم برانڈ یوز کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تمہارے پاس یلے یونیورسٹیز کی ڈگریاں ہیں یا تمہارے پاس پاکستان کی چیچا وطنی کی کسی اسکول کی ڈگری ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ اسی کے خوبصورت نام ہیں، اور اسے بہت اونچی آواز میں بھی نہ پکارو اور بہت نیچی آواز کے ساتھ بھی نہیں۔ وابتغ بین ذالک سبیلا، ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرو۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور کہو تعریف اس طرح سے کرو اس کی کہ وہ اس اللہ کے لیے ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک، اور نہ وہ عاجز ہے کوئی اس کو ہرا سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔